Hello everyone, welcome back to A Square Academy. In today's video, I will be explaining an important concept, how to create a table and how to insert values into it. So stay tuned, stay connected and let's dive right into the topic. As you know, the assignment 2 is create table person with the attributes. We need to apply the constraints and we need to insert 5 records in every table. So let's directly see how to create the table. Okay. So here you can see this is how you're going to create the table. Creating the table I have already explained in my previous video. So you can watch that particular video, right? How to execute and save your SQL file. Here you can see create table person with attributes P number, P name, birth date and income. For birth date, the data type is what? Date, right? And I have applied check constraint on the attribute income, right? So let's execute this particular file. So for executing, we need what? Our software PSQL, right? Where we are performing our operations, right? So here we need the path of a file, that is \I. We need to copy the path. So this is how we are going to copy the path. C drive, DBMS practical folder, and this is my file. Okay, just click enter. So here you can see your table is created without an error. There is no error while creating the table. Now we are going to insert the values in our table. How to see the description? Description is seen by \D and the table name, that is person 901. This is my table name and just click enter. So this is what the description of your table. Let's insert the values into it. So here this is how you are going to insert the values into the person table, right? So here you can see insert into person 901 and we need to write over here values. S we need to add. You should always be careful while inserting the values. आपको हमेशा ये ख्याल रखना है जितने नंबर के एट्रीब्यूट्स है आपके पास में उतने वैल्यूज यहाँ पर जाने चाहिए. ठीक है, चलो काउंट करते हैं. P number 1, this is 2, this is 3 and this is what? 4. So how many attributes you have? You have 4 attributes for the table person 901. तो वैल्यूज भी उतने ही जाने चाहिए. चलो चेक करते हैं. 1, this is 2, this is 3 and this one is what? 4. तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए जितने एट्रीब्यूट्स है उतने वैल्यूज हमारे जा रहे हैं. दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे डेटा टाइप INT है वहां पर आपको कोट्स में आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करने, और जहां पर वेर कैर है, डेट है, वहां पे आपको सिंगल कोट्स का यूज करना है. केयरफुली आपको इसको ओपन एंड बंद करना है. देखो ये पूरा के पूरा एक वैल्यू है, इसको हमने एनक्लोज किए है सिंगल कोट्स में. उसी तरह ये दूसरा वैल्यू है, इसको पूरा एनक्लोज करना है सिंगल कोट्स में, राइट? तो हमेशा याद रखो डेट भी आपका किस में आएगा? सिंगल कोट्स में आएगा. और डेट लिखते वक्त आप इसी तरह से लिखने वाले हो. 12 जून 2013, जैन 1992, 11 अक्टूबर 2005, 13 मई 1985. मतलब जहाँ पे आपका मंथ है वहाँ पे आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है. जून लिखना है, जैन लिखना है, फेब लिखना है, जनवरी लिखना है, जैन, अप्रैल लिखना है, APR, राइट? इस तरह से आपको वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर सिंटैक्स से या दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप लोगों को समझ में आया है कि वैल्यूज़ को किस तरह से इंसर्ट करते हैं. भूलना नहीं है, इंसर्ट लिखना है, इनटू टेबल का नाम लिखना है, वैल्यूज़ लिखना है, ब्रैकेट देना है, और जितने नंबर के एट्रीब्यूट्स है उतने वैल्यूज़ हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट में जाना चाहिए. ब्रैकेट बंद होना चाहिए और लास्ट में आपको क्या लिखना है? सेमीकोलन. तो इसी तरह आपको कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं? 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं. और मैंने क्या कहा, किसी एक
एक एट्रीब्यूट के वैल्यू को रिपीट कराना है। जैसे मैंने इनकम के वैल्यू को रिपीट करा है, 50,000 मैंने कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है, राइट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लीट क्रिएट टेबल हो गया और इंसर्ट वैल्यूज हो गए। चलो ये फाइल को फिर से रन करते हैं। क्रिएट हमारा हो चुका है, इसलिए मैंने इसको दोबारा कमेंट में डाल दिया। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज व्हाट, सिंगल लाइन कमेंट। अगर एक लाइन को मुझे कमेंट करना है तो मैं यूज करूंगी ये वाले 2 वाले डैश, ठीक है। डैश को मैं 2 बार यूज करूंगी, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज्यादा लाइन को कमेंट में डालना है तो मैं इस तरह से कमेंट में डालूंगी, ठीक है। अब मुझे फाइल को क्या करना है, सेव करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करना है एंड आई नीड टू क्लिक ऑन सेव। फिर अभी मुझे क्या लगेगा, मेरा शेल लगेगा। फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पाथ को कॉपी करना है, जो ऑलरेडी मैंने कॉपी किया था यहाँ पे। तो मैं जस्ट एरो से उसको ले लूंगी एंड एंटर प्रेस करूंगी, राइट। तो हियर यू कैन सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड, 5 रिकॉर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, जितने बार इंसर्ट 01 लिख कर आया है वो आपको काउंट करना है। अब मेरे टेबल में वैल्यूज गए हैं वो चेक करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन 901 एंड सेमीकोलन एंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा टेबल बन चुका है। पर्सन 901 मेरा टेबल है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बेसिक क्वेरी, राइट, वेयर वी आर हैविंग सिलेक्ट क्लॉज फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम में हमारे टेबल का नाम आएगा और सिलेक्ट में जो एट्रीब्यूट्स हमें आउटपुट में चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल एंड इंसर्ट द वैल्यूज। तो आई होप यू कैन डू इट फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, राइट। Thank you for watching my video.